हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड एक्सप्रेशन फॉर रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स के लिए कपलिंग और ट्यूनिंग पैरामीटर्स की कि किसी भी माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की ट्यूनिंग हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। दैट इज द वॉल्यूम ट्यूनिंग होता है, अनदर वन वाज द कैपेसिटिव ट्यूनिंग एंड द थर्ड वन वाज द इंडक्टिव ट्यूनिंग। तो आज हम किसी रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर और सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए हम फील्ड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे। बट क्योंकि एक कैविटी रेजोनेटर एक टाइप के वेवगाइड का ही सेक्शन होता है, हम यहाँ पे TM मोड और TE मोड दोनों के लिए, रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर और सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए फील्ड एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे। So first of all, hereby I am deriving an expression for TE-MNP and TM-MNP modes in rectangular cavity resonator. In this figure, you can see it is a diagram of a rectangular cavity resonator. और एक rectangular cavity resonator एक rectangular waveguide का ही section होता है जिसके दोनों ends को हम किसी conducting plate से close कर देते हैं। जब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो यह इसका ब्रेथ A और विड्थ B है। साथ ही यदि इस रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर की हमें लेंथ बतानी है तो वो है D। ठीक है, यहाँ पे हमें इस रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए TE मोड और TM मोड के लिए फील्ड एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। जब हमें TM मोड के लिए फील्ड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, so for the case of the TM waves, we know Hz component will be equal to the 0. So in the TM waves, Hz is equal to the 0, but Ez component does not equal to the 0. So in that case, the wave equation will be written as del 2 Ez over del x square plus del 2 Ez over del y square plus gamma square Ez, that will be equal to the minus of omega square mu into the Ez. ये उसी टाइप का डेरिवेशन है जैसा डेरिवेशन हमने TM मोड के लिए एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए फील्ड एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए फॉलो किया था। So like that similar way, here we will be deriving an expression for Ez or Hz component in the corresponding mode. So let us assume that gamma square plus omega square mu epsilon is equals to the H square. So this above equation can be written as del 2 Ez over del x square plus del 2 Ez over del y square। अब यहाँ पे जो गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा, उसकी जगह हम लिखेंगे h स्क्वायर इंटू दी Ez। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलती है। जब हम उस इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हियर आई एम राइटिंग दैट एक्सप्रेशन फॉर Ez that will be equal to the C1 cos bx plus C2 sin bx into C3 cos ay plus C4 sin ay। अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। वो बाउंड्री कंडीशंस वही होगी जैसे कि हमने जब रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए फील्ड एक्सप्रेशंस को डिराइव किया था। So here we are not deriving all that equations to solve a simplified expression for Ez. So directly we will get the following equation for the TM-MNP waves as Ez will be equal to the C into sine of m pi x upon a, sine of n pi y upon b into the cos of p pi upon d into the z e raised to the power j omega t minus gamma z. Here you can see A and B are showing the breadth and the width of the waveguide and D is showing the length of the cavity resonator. So here M
is the integer number which can exhibit the value of the 0, 1, 2, 3 and so on, as it represents the number of half wave variation in the x direction. Similarly, when we talk about another two parameters like n and p, then m will be taken as 0, 1, 2, 3 or so on in y direction. It means n is representing the number of half wavelength variation in the y direction, and p, because d is showing the length of the cavity resonator and that is in the along z direction. So p here could be taken 0, 1, 2, 3 and so on, which is representing the number of half variations in the z direction. So ये हमने बात की थी टी एम वेव के लिए. अब आगे हम बात कर रहे हैं टीई वेव के लिए. देखिए टीई वेव की जब हम बात करते हैं या टीई मोड को जब हम डिस्कस करते हैं तो उस केस में ई जेड कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है, बट एच जेड कंपोनेंट कैन नॉट बी इक्वल टू दी 0. सो फॉर सॉल्विंग इन एक्सप्रेशन फॉर द component, here we will write Maxwell's equation as del 2 hz will be equal to the minus of omega square mu epsilon into the hz. अब क्योंकि हम TE वेव की बात कर रहे हैं, so for TE wave to propagate, EZ component will be equal to the 0, but HZ component cannot be equal to the 0. So del 2 hz over del x square plus del 2 hz over del y square plus del 2 hz over del z square will be equal to the minus omega square mu epsilon into the hz. Here we can take that del 2 over del z square will be equal to the gamma square. So यहाँ पे आप देख सकते हैं del 2 over del z square is taken as an operator. So using this operator in the previous equation, we will get del 2 hz over del x square plus del 2 hz over del y square plus gamma square hz plus omega square mu epsilon hz will be equal to the 0. Further, this equation can be written in the form of the del 2 hz over del x square plus del 2 hz over del y square plus hz into the gamma square plus omega square into mu epsilon, which is equal to the 0. Here we can introduce another parameter h square, which is equal to the omega square mu epsilon plus gamma square. So in that case, second order partial differential equation will take the form as del 2 hz over del x square plus del 2 hz over del y square plus h square hz equal to the 0. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस इक्वेशन को जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करते हैं और साथ ही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, then we will get a expression for hz component, and that will be equal to the c cos of m pi x upon a cos of n pi y upon b and multiplied by sin of p pi upon d z e raised to the power j omega t minus gamma z. यहाँ पे इन माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर में जो वेव प्रोपोगेशन है दैट इज अकरिंग इन दी z डायरेक्शन. अब आगे हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f नॉट की. So to calculate resonant frequency f naught, we will take into consideration this expression for rectangular waveguide, that h square is equals to the gamma square plus omega square into the mu epsilon. जहां हम देख सकते हैं कि h स्क्वायर को हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल लिया था और a और b की वैल्यू आई थी m पाई अपॉन a का स्क्वायर प्लस n पाई अपॉन b का स्क्वायर. ये उसी टाइप से है जैसा हमने एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए सॉल्व किया था. सो h स्क्वायर अभी हमने कंज्यूम किया है gamma square plus omega square into mu epsilon, that will be equal to the m pi upon a square plus n pi upon b square. So omega square mu epsilon will be equal to the m pi upon a square plus n pi upon b square minus of gamma square. Here we are assuming that the attenuation constant is equals to the 0, as propagation constant gamma can be written as alpha plus j beta. So here alpha is taken 0 if
wave propagation exists in the cavity resonator, in that case gamma square will be equal to the minus of beta square. So omega square mu epsilon could be written as equal to the m pi upon a square plus n pi upon b square plus beta square. अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैविटी रेजोनेटर में वेव प्रोपोगेशन हो रहा है तो उस केस में वहां पे फेज चेंज भी होगा एंड दैट फेज चेंज विल बी करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन गाइड वेवलेंथ. सो उस केस में हम बीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा जी से. यहाँ पर जो लैम्डा जी है दैट इज द गाइडेड वेवलेंथ. सो यदि हम चाहते हैं कि जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करे, so there will be a condition for the microwave resonator to resonate at a particular frequency and that condition will be given as beta will be equal to the small p pi upon d. अब यहाँ पे जो p है, this p indicates the number of the half wave variation of the electric or magnetic field along plus z direction. So here beta will be taken as p pi upon d. So अगर हम ये कह रहे हैं कि ये माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है एंड दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द f is equals to the f naught and omega is equals to the 2 pi f naught which will be equal to the omega naught. So जब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है m by m n और p के टर्म में. So omega square mu epsilon will be equal to the m pi upon a square plus n pi upon b square plus p pi upon d square. As we know that angular frequency can be written equal to the 2 pi f naught. So हमने यहाँ ओमेगा की जगह 2 pi f naught रखा और जब हमने इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई किया तो हमें माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन मिलता है and f naught will be equal to the 1 upon 2 pi under root of mu epsilon m pi upon a square plus n pi upon b square plus p pi upon d का होल स्क्वायर की पावर हाफ. यहाँ से हम f naught for सिंप्लीफाई कर सकते हैं and that can be equal to the c upon 2 m upon a का होल स्क्वायर प्लस n upon b का होल स्क्वायर प्लस p upon d का होल स्क्वायर की पावर हाफ. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ कैलकुलेट की है एक हमने रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए, तो ये जो कैविटी का एक्सप्रेशन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये TE मोड और TM मोड दोनों के लिए सेम रहता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड एक्सप्रेशन फॉर TE and TM modes in circular resonator. अभी हमने बात की थी रेक्टेंगुलर रेजोनेटर की, अब हम आगे बात कर रहे हैं सर्कुलर रेजोनेटर के लिए फील्ड एक्सप्रेशन की. So here I will be calculating a field expression for TE wave in circular resonator. So यहाँ पे फिगर में हमने एक सर्कुलर रेजोनेटर का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जिसकी रेडियस a है और इस सर्कुलर रेजोनेटर की लेंथ d है. ठीक है, जब हमने एक सर्कुलर वेवगाइड के लिए हमने फील्ड एक्सप्रेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था तो उस केस में हमने, अब क्योंकि हम TE वेव की बात कर रहे हैं तो TE वेव या TE मोड के लिए EZ कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी बट HZ कंपोनेंट 0 नहीं हो सकता है. सो उस केस में जब हमने HZ कंपोनेंट के लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था तो इस प्रकार से हमारे पास में बीजल्स फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेशन आया था Cn Jn प्लस Dn Nn और प्लस इन मल्टीप्लाइड बाय द An sin n phi प्लस Bn cos n phi e raised to the power j omega d माइनस गामा z. बट हमने कहा था कि सेकेंड ऑर्डर का बीजल्स फंक्शन 0 हो जाता है जब हम अप्रोच करते हैं इनफाइनाइट की तरफ, तो इसीलिए हमने हमारे सॉल्यूशन को फाइनाइट रखने के लिए न्यूमैन फंक्शन को 0 के इक्वल लिया था और केवल बीजल्स फंक्शन हमने देखा था. और फर्दर जब हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमने वहाँ अप्लाई किए थे तो जो दो साइनोसाइडल टर्म आती हैं हमारी साइन और कॉस की, उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं an sin n phi. आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है an sin n phi और bn cos n phi को उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर से मल्टीप्लाइड बाय द cos ऑफ n phi प्लस tan इनवर्स ऑफ an अपॉन bn.
सो जब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यूज में लेते हैं, अभी तो हमने क्या लिखा है दैट एच जेड विल बी इक्वल टू द ऑफ ए प्राइम जे एन रो एच कॉस ऑफ एन फाई प्राइम ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ए प्राइम और एन एफ प्राइम लिखा है। देखिए ए प्राइम क्या लिखा है हमने, ए प्राइम इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्राइम स्क्वायर, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो एन फाइव प्राइम है दैट इज इक्वल टू द एन फाइव माइनस ऑफ द tan इनवर्स ऑफ बी एन प्राइम अपॉन ए एन प्राइम। सो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे इनके लिए एक्सप्रेशन लिखे हैं। अब जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो माइक्रोवेव है ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सो इन दैट केस एच जेड कंपोनेंट को हम लिखेंगे ए प्राइम जे एन रो एच कॉस ऑफ एन फाइव प्राइम ई रेज़ टू द पावर जे ऑफ ओमेगा टी माइनस गामा जेड। बट अगर हम कह रहे हैं कि ये माइक्रोवेव माइनस जेड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, in that case hz will be equal to the a prime j and rho h cos of n phi prime e raised to the power j omega t plus beta z। अब हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स अज्यूम किए हैं। लेट अस अज्यूम दैट a प्लस एंड a माइनस आर द एम्पलीट्यूड कंपोनेंट्स ऑफ द वेव, कि जब वेव पॉजिटिव और नेगेटिव z डायरेक्शन में मोशन कर रही है उस केस में उसके कंपोनेंट a प्लस और a माइनस है। सो हम उस केस में क्या लिखेंगे, ये जो एच जेड कंपोनेंट है हम उसको कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ एन फाइव प्राइम इंटू द ए प्लस प्लस जेड डायरेक्शन में और माइनस जेड डायरेक्शन में। सो ए प्लस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा जेड प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर प्लस बीटा जेड। अब अगर हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि जो ए माइनस है वो ए प्लस के इक्वल है, सो उस केस में अब क्योंकि हम टीई मोड की बात कर रहे हैं, तो इस केस में ई जेड की वैल्यू तो जीरो होगी, बट ई रो और ई फाई की वैल्यू जीरो कब होगी, जब हम a माइनस को a प्लस के इक्वल लेंगे। सो उस केस में ई फाई और ई रो की वैल्यू जीरो हो जाएगी एट द पॉइंट ऑफ द z इक्वल्स टू द जीरो। सो a प्लस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा डी प्लस a माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर प्लस ऑफ बीटा डी विल बी इक्वल टू द, उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2j a प्लस साइन ऑफ बीटा डी के इक्वल। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें साइन बीटा डी की वैल्यू जीरो के इक्वल करनी है, तो उस केस में बीटा डी की वैल्यू जब पी पाई यानी पाई के कुछ इंटीग्रल के बराबर होगी तब हमारा साइन बीटा की वैल्यू की जीरो हो जाएगी। यहाँ पे हम पी की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रख सकते हैं। सो बीटा की वैल्यू पी पाई अपॉन डी के लिए यहाँ से हमें ई रो और ई फाई के एक्सप्रेशन जीरो मिलते हैं। सो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करा है और फाइनल जब हमें हमारा जो एच जेड का एक्सप्रेशन अभी आप देख सकते हैं ऊपर ये वाला है, इसमें जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा कॉस ऑफ एन फाइव प्राइम जे एन रो एच माइनस 2j a साइन ऑफ पी पाई अपॉन डी, बीटा डी की जगह रखा है हमने पी पाई और z ई रेज़ टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस 2j a कांस्टेंट है तो इसको हमने cn से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमने इसको cn से रिप्लेस किया तो हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है hz के लिए साइन के टर्म में। सिमिलरली हम इस एक्सप्रेशन को a प्लस और a माइनस कंपोनेंट एम्पलीट्यूड की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देन hz विल बी इक्वल टू द cn jn ऑफ रो h cos ऑफ n फाइव प्राइम a प्लस e raised to the power minus j beta z plus of a minus e raised to the power plus j beta z। सो ये तो अभी हमने बात की थी टीई वेव के लिए। अब आगे हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए टी एम मोड की। तो जैसे अभी हमने टीई वेव के लिए सॉल्व किया है उसी प्रकार से हम यहाँ पे टी एम वेव के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन हम उसका लिख रहे हैं। टी एम मोड के लिए एच जेड कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू द जीरो बट ई जेड कॉम्पोनेंट विल नॉट बी इक्वल टू द जीरो। So here Ez will be the C of Jn prime rho h, An prime cos of n phi plus Bn prime sin of n phi। अगेन हम यहाँ पे ले सकते हैं A prime को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ द An prime स्क्वायर प्लस Bn prime स्क्वायर एंड n phi prime कैन बी इक्वल टू द n phi माइनस tan इनवर्स ऑफ Bn prime अपॉन An prime। सो यहाँ से Ez के लिए एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा A prime Jn prime rho h cos of n phi prime, जहाँ पे A prime की वैल्यू ये है और n phi प्राइम की वैल्यू ये है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेव प्लस z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, सो उस केस में Ez विल बी इक्वल टू द a प्राइम jn प्राइम रो h cos ऑफ
n phi prime e raised to the power j omega t minus beta z, and if wave is propagating in negative z direction, in that case Ez will be equal to the a jn prime rho h cos of n phi prime e raised to the power j of omega t plus of beta z. यहाँ हम इसे कॉम्पोनेंट एम्पलीट्यूड कॉम्पोनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन दैट केस Ez विल बी इक्वल टू द jn प्राइम रो h a प्लस ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा z प्लस a माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस a माइनस e रेज़ टू द पावर प्लस बीटा z cos ऑफ n phi प्राइम. अब अगेन हम यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि z बराबर 0 और z इक्वल्स टू दी d वैल्यू पे Ez की वैल्यू 0 के इक्वल होगी. सो उस केस में a प्लस विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ a माइनस, या फिर हम ये बोले a माइनस विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ a प्लस. तो ये हमारी जो इक्वेशन b है वो वैनिश हो जाएगी इन पॉइंट्स पे. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट jn प्राइम ऑफ रो h a प्लस e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा z माइनस ऑफ e रेज़ टू दी पावर बीटा z cos ऑफ n phi प्राइम विल बी इक्वल टू दी 0. फर्दर हम जानते हैं कि e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ बीटा z e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा z किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ 2j साइन बीटा z के. सो अब हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाई है कि जब z बराबर 0 है तो Ez की वैल्यू भी 0 होगी और z बराबर t पर भी 0 होगी. सो इन दैट केस दैट इज कुड बी रिटन एज jn प्राइम रो h a प्लस, इसकी जगह हमने लिखा माइनस ऑफ 2j साइन बीटा d cos ऑफ n phi. अब जानते हैं कि हम कंपोनेंट एम्पलीट्यूड तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता. सो इट मींस cos ऑफ n phi प्राइम विल बी इक्वल टू दी 0 और साइन बीटा d विल बी इक्वल टू दी 0. सो हम यहाँ कह सकते हैं cos of n phi prime cannot be equal to the 0 and sin beta d can be equal to the 0. So उस केस में बीटा d की वैल्यू p pi के इक्वल होगी. So यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिलती है p pi अपॉन d के इक्वल. So फाइनल फील्ड एक्सप्रेशन Ez can be written as of j and rho h cos of n phi prime sin of p pi upon d z e raised to the power j omega t minus beta z, जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव z डायरेक्शन की. बट for the case when we will be talking about the minus z direction propagation, Ez can be written as jn prime rho h cos of n phi prime sin of p pi upon d z of e raised to the power j omega t plus beta z. ये अभी हमने बात की थी फील्ड एक्सप्रेशन की एक सर्कुलर रेजोनेटर के लिए TM मोड और TE मोड के लिए. अब आगे हम बात कर रहे हैं सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की. So now we will be derive an expression for resonant frequency f naught in circular cavity resonator. और जो हमने सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर अज्यूम किया है उसकी रेडियस a है और इसकी लेंथ है d. और अभी हमने साथ ही डिस्कस किया था इसके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करने के लिए कंडीशन आई थी बीटा दैट वाज इक्वल टू द p pi अपॉन d. साथ ही हमने h स्क्वायर को अज्यूम किया था गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के. सो यहाँ से जब हम देखते हैं तो गामा स्क्वायर की वैल्यू देखिए, हम यहाँ से देख रहे हैं तो गामा, अब ये देखिए ये हम देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू दी पी एन एम अपॉन ए का स्क्वायर. तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन एम अपॉन ए का स्क्वायर माइनस ऑफ गामा स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास में गामा स्क्वायर के लिए रिलेशन, ओमेगा स्क्वायर के लिए रिलेशन आया है. और जब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तो उस केस में अल्फा की वैल्यू 0 होगी, गामा की वैल्यू से बीटा के बराबर होगी और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल होगी. सो हियर रीअरेंज करते हैं तो एफ नॉट के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज इक्वल टू द 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ द म्यू एप्सिलॉन पी एन एम अपॉन ए का स्क्वायर प्लस पी पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर की पावर हाफ. सो जब हमें टी एम और TE मोड के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बताना होगा, so it will be expressed as f naught that is equal to the c upon 2 pi. C is the velocity of light, 1 upon under root of mu epsilon equal to the, so c upon 2 pi multiplied by the pnm upon a का स्क्वायर प्लस p pi upon d का होल स्क्वायर की पावर हाफ. और जब हमें TE मोड की बात करनी होगी so that will be equal to the c upon 2 pi p prime nm अपॉन ए का स्क्वायर प्लस पी पाई अपॉन डी का होल स्क्वायर की पावर हाफ. सो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने बात करी है कि रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर और सर्कुलर रेजोनेटर के लिए फील्ड एक्सप्रेशन की, साथ ही उनके लिए हमने एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव किया है. थैंक यू सो मच.